Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are fine. Dear students, today we are going to we are going to continue a topic of class 8th English book, and the name of the topic is Julius Caesar. So it's from your textbooks page number 44. सो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रूटस जो है जूलियस सीजर का मर्डर करवा देता है, लेकिन बाद में लोगों को इसकी असलियत पता चल जाती है कि इसने क्यों ये किया होता है। वो असलियत लोगों तक किसने पहुंचाई होती है? मार्क एंटनी ने। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ब्रूटस एंड केसेस fled to Greece. About a year later, they were camped with their army at Sardis, and Antony, along with Octavius, another friend of Caesar, with their army were near the town of Philippi, some miles away. During that year, Brutus had become an unhappy, bitter man. His companion had lost their ideal and were fighting among themselves. At Sardis, he received news that his wife was dead, and sorrow was added to his bitterness. अब ब्रूटस और केसेस जो है, जब लोग इनके पीछे भागे इनको मारने के लिए, तो ये दोनों भाग गए कहाँ? ग्रीस। तो 1 साल के बाद ये क्या करने लगे? अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे रहने लगे। लेकिन तब तक जो ब्रूटस है बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका मिजाज बहुत ज़्यादा बदल गया था, अनहैप्पी मैन था, बहुत ही बिटर पर्सन बन गया था। मतलब कड़वाहट जैसी होने लगी थी इसकी ज़बान में, इसके मिजाज में। तो उस साल क्या हो गया? ड्यूरिंग दिस ब्रूटस जो अच्छा ठीक है, हिज कंपेनियन है लॉस्ट, वो सिर्फ अपने एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। और क्या हुआ था एट सार्जिस, और उस टाइम पे इसको एक खबर मिली कि इसकी बीवी जो है मर गई, और इससे इसका जो ये गम था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Brutus wanted to march to Philippi and attack Mark Antony there, but Cassius was against. He wanted to wait for the enemy to come to them, but Brutus persuaded Cassius and they marched to Philippi. Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. अब वहीं पे नज़दीक फिलिपी में कौन था? मार्क एंटनी था अपनी आर्मी के साथ, ठीक है। तो अब ये जो ब्रूटस है ये क्या बोल रहा था कि मैं वहीं जाके इसको मारूंगा, लेकिन इसका जो केसेस फ्रेंड था वो मना कर रहा था। वो क्या बोल रहा था? दुश्मन हमारे पास आएगा तब मारेंगे। लेकिन ब्रूटस ने नहीं माना, वो फिलिपी की तरफ निकल गया मार्क एंटनी को मारने के लिए। लेकिन मार्क एंटनी के पास एक बेनिफिट ये था कि उसके पास एक तो नई आर्मी थी और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल था हर साइड से। While preparing for battle, Cassius said to Brutus, "If we lose this battle, will you be content to be led a prisoner through the street of Rome?" Brutus swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and two men parted, each to lead his own half of the army into battle. अब केसेस जो है ब्रूटस को बोलता है कि अगर आप हार गए, मानो कि अगर आप इस बैटल में हार के, क्या आप तैयार हैं कि आपको एक एज ए प्रिजन रोम में रखा जाएगा? तो वो क्या बोलता है? ऐसा वक्त आने से पहले मैं अपने आप को मार दूंगा। और दोनों अपने अपने रास्ते पे चल जाते हैं। By midday, it already seemed certain that Mark Antony was the winning side. A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp, and he mistakenly Brutus' own men for Antony, thought the battle was lost. In despair, he killed himself with his own sword. Brutus, arriving on the scene a short time later, found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly. तो अब आधे दिन में ही पता चल गया था कि जो एंटनी की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा लीड कर रही थी, और ब्रूटस की आर्मी का एक आदमी आके क्या बोलता है कि एनिमी जो है हमारी ज़मीन में आ चुका है। तो केसेस को बोलते हैं। तो केसेस डर के मारे क्या करते हैं? अपनी तलवार निकाल के खुद को मार देता है। और जैसा ही ब्रूटस आता है वो केसेस को मरा हुआ पाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? रोने लगता है। और क्या बोलता है? ओ जूलियस सीजर, दो आर्ट माइट येट the spirit walks once more against the enemy. Before long, the spirit walks abroad and turns our sword against ourselves. He led the remainder of his army bravely once more against the enemy. Before long, he was defeated and most of his army was taken prisoner. Mark Antony then gave order that Brutus must be found and brought to Octavius' tents, but Brutus had killed himself with his own sword. Like Cassius, Mark Antony, kneeling beside Brutus' body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man.
अब क्या हो गया, ये क्या बोलने लगा वहाँ पे, जब रोने लगा केसेस को देखे तो बोलता है मैं देखो जूलियस सीजर को पुकार के बोल रहे कि जूलियस सीजर देखो, अल्लाह ने अपने इंसाफ कर दिया, जैसे हमने आपको मारा था वैसे हम आज खुद को मार रहे हैं। और ब्रूटस क्या जो मार्क एंटनी है वो अपनी आर्मी को ऐलान देता है कि ब्रूटस को ढूंढ के कहाँ पे लाओ, कैंप में लाओ, ऑक्टेवियस कैंप में। तो ब्रूटस क्या करते हैं, अपने आप को अपनी स्वॉर्ड से मारते हैं, लेकिन जैसा ही ब्रूटस अपने आप को मारता है तो एंथनी को पता चल जाता है, तो एंथनी जैसा उसको देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। This was the noblest Roman of them all, he said. All the others did what they did in envy of great Caesar. Brutus was the only with honest thought for the good of the people. He stood up and told his soldier to carry Brutus' body into the camp for honorable burial. We must treat him according to his virtues. He finished and says to all the world, this was a man, a brave and honorable man. अब ये क्या बोलता है मार्क एंटनी कि बहुत ही ज़्यादा नोबलेस्ट रोमन था, इसने जो किया सो किया वहाँ के लोगों के लिए किया, व्हाट दे डिड इन, ठीक है, एनवी के लिए, कि ब्रूटस जो था ये लोगों का अच्छा चाहता था। तो ये खड़ा हुआ और अपनी आर्मी को क्या बोलो, इसकी बॉडी को ले जाओ, बहुत ही अच्छे से इज़्ज़त से इसको क्या करना है, बुरियल मतलब दफन करना है, और हमें इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल मैन है, क्योंकि ये था भी। सो दिस द एंड ऑफ दिस चैप्टर।